English, Class 10, Chapter 1, A Triumph of Surgery, Question and Answers. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Answer. Mrs. Pumphrey worried about Tricky because he was so tired and seemed to have no energy. He was sick because he wasn't eating well and was suffering from malnutrition. Afterwards, Tricky was eating nothing and even refusing his favorite dishes. And had bouts of vomiting, bar ulti hona. He was just lying on a rug and panting, hafna, तेजी से सांस लेना, not willing to go for a walk or to do anything. मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? आंसर. मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि वह बहुत थका हुआ और एनर्जीलेस लग रहा था. उन्हें लगा कि वह बीमार है क्योंकि वह ठीक से भोजन नहीं कर रहा था और मालन्यूट्रिशन से पीड़ित था. इसके बाद ट्रिकी ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा भोजन भी नहीं खा रहा था और उसे बार उल्टियां हो रही थीं. वह बस एक गलीचे, रग पर पड़ा हाँफ रहा था और उसमें टहलने या कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी. What does she do to help him? Is she wise in this? Answer. She had been giving him extra snacks between his regular meals to make him stronger. These snacks included some malt and cod liver oil. Also a bowl of Horlicks at night to help him sleep. She continued to give him sweets because Tricky loved cream cakes and chocolates. Further, when he falls seriously ill, she consults a veterinary surgeon. She was not wise in this because she was not following the vet doctor's advice of reducing the sweet things. Food and give him more exercise and to put Tricky on a very strict diet. The Tricky's only problem was that he was greedy, never refused food and would eat at any time. She makes him a pampered and overfed dog. Because of this, Tricky becomes extremely fat, like a fat sausage with a leg on each corner. His eyes become red and watery. वह उसे मदद करने के लिए क्या करती है? क्या वह इस मामले में समझदार है? आंसर. वह ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए उसके रेगुलर फूड्स के बीच एक्स्ट्रा खाना देती थी. इन खाना में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में उसे सोने में मदद करने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा शामिल था. वह ट्रिकी को मीठा देना जारी रखती थी क्योंकि उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद थे. इसके अलावा, जब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो वह एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है. वह ऐसा करके समझदारी नहीं दिखाती है क्योंकि वह वेट डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं कर रही थी, जिसमें मीठी चीजें और भोजन कम करना, उसे अधिक व्यायाम देना और ट्रिकी को सख्त आहार पर रखना शामिल था. ट्रिकी की एकमात्र समस्या उसका लालची स्वभाव था. वह कभी भोजन को मना नहीं करता था और किसी भी समय खा लेता था. वह उसे एक लाडला और जरूरत से ज्यादा खिलाया जाने वाला कुत्ता बना देती है. इसी कारण ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है, जैसे कि हर कोने पर एक पैर वाली मोटी सॉसेज हो. उसकी आंखें लाल और पानी से भर जाती हैं. Who does I refer to in this story? Answer. The I refers to the veterinary surgeon, Mr. James Herriot, who is the narrator in this story. इस कहानी में मैं कौन है? आंसर. मैं शब्द वेट डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस कहानी का नरेटर भी है. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? Answer. No, the narrator Mr. Herriot, the vet, is not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey. The vet, Mr. Herriot, and his partners were amazed in enjoying luxurious food and drink sent by Mrs. Pumphrey, eggs, wine, brandy. At one point of time he was having a short temptation to keep Tricky as a permanent guest to enjoy the same facilities. This suggests that it was not something they experience regularly.
He is a veterinary surgeon. As described in the story, his lifestyle is very simple as compared to Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey excessive pampering and overfeeding of Tricky, such as multiple bed cushions, different coats for different weather, toys, rubber rings, different bowls for different meals of the day, a chauffeur-driven car, malt, Horlicks, fresh eggs, wine, brandy for him. Points to a very high level of wealth. Whereas the narrator was having a small car, which was not enough to load the daily usable items of the small dog Tricky. The narrator was not able to provide a luxurious life. He made bed for Tricky in a warm loose box next to the other dogs. The meal was common for all dogs, nothing special for Tricky. On the basis of above, we can say that the narrator Mr. Harriet, the vet, is not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey. क्या नरेटर ट्रिकी की मालकिन के जितना अमीर है? आंसर नहीं, नरेटर मिस्टर हैरियट, वेट डॉक्टर, ट्रिकी की मालकिन मिसेज पम्फ्रे जितना अमीर नहीं है। वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट और उनके सहयोगी मिसेज पम्फ्रे द्वारा भेजे गए शानदार भोजन और ड्रिंक्स, अंडे, शराब, ब्रांडी से चकित और खुश थे। एक समय तो उन्हें ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने का प्रलोभन भी हुआ ताकि वे उन्हीं सुविधाओं का और अधिक आनंद ले सके। इससे पता चलता है कि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका अनुभव वे नियमित रेगुलर रूप से करते थे। मिस्टर हैरियट एक पशु चिकित्सक हैं। कहानी में उनकी जीवन शैली मिसेज पम्फ्रे की तुलना में बहुत सरल है। मिसेज पम्फ्रे द्वारा ट्रिकी की अत्यधिक लाड़ प्यार और अत्यधिक खिलाना, जैसे कई बिस्तर, कुशन, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग कोट, खिलौने, रबर के छल्ले, दिन के अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग कटोरे, एक चौफर चालित कार, माल्ट, हॉर्लिक्स, ताजे अंडे, शराब, ब्रांडी, उनकी उच्च स्तर की संपत्ति की ओर इशारा करते हैं। जबकि नरेटर के पास एक छोटी कार थी जो छोटे कुत्ते ट्रिकी की डेली यूज की वस्तुओं को लोड करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नरेटर ट्रिकी को एक शानदार जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने ट्रिकी के लिए अन्य कुत्तों के बगल में एक गर्म खुले बॉक्स में बिस्तर बनाया। भोजन सभी कुत्तों के लिए सामान्य था। ट्रिकी के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेटर मिस्टर हैरियट, वेट डॉक्टर, ट्रिकी की मालकिन मिसेज पम्फ्रे जितनी अमीर नहीं है। How does he treat the dog? Short answer, he treats the dog Tricky with a strict but caring approach. He initially restricts Tricky's food intake to help him recover from being overfed and inactive. He gave Tricky no food, but plenty of water for first 2 days. Dr. Harriet gradually increases Tricky's food and allows him to interact with other dogs, ultimately helping him regain his health and enthusiasm, utsah, josh, for exercise. Detailed answer, Mr. Harriet treats Tricky's illness as a professional vet doctor. He identifies overfeeding and lack of exercise as the primary causes. When Tricky's condition worsens, he brings him to his hospital for proper care. His treatment is based on a strict and controlled diet and regular exercise by interacting with other dogs. Mr. Harriet treated Tricky like an overweight and lazy dog, reducing his food intake and keeping him under close observation in the initial few days. He gave Tricky no food, but plenty of water for first 2 days. Gradually, he increased Tricky's food intake with a balanced diet and set him free for physical activities to improve his health. Mrs. Pumphrey was the complete opposite of this. With excessive pampering and overfeeding, misunderstanding the dog's needs such as the dangers of overfeeding, the importance of a balanced lifestyle, or the power of practical care. Consequently, due to the practical approach Mr. Harriet
Tricky experiences a rapid recovery without the need for medication. He is returned to his owner in good health, which shows his effective and sensible treatment of the dog's health issue. वह कुत्ते का कैसे इलाज करता है? शॉर्ट आंसर, वह कुत्ते ट्रिकी का स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग तरीके से इलाज करता है। वह शुरू में ट्रिकी के खाने की मात्रा को कम करता है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। उसने ट्रिकी को पहले 2 दिनों में सिर्फ बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया, लेकिन कोई खाना नहीं दिया। डॉक्टर हैरियट धीरे धीरे ट्रिकी का खाना बढ़ाते हैं और उसे अन्य कुत्तों के साथ घुलने मिलने की अनुमति देते हैं। वह ट्रिकी की सेहत फिर से वापस पाने में मदद करते हैं और व्यायाम के लिए उत्साह जोश भरते हैं। डिटेल्ड आंसर, मिस्टर हैरियट एक वेट डॉक्टर की तरह प्रोफेशनल रूप से ट्रिकी की बीमारी का इलाज करते हैं। इसकी वजह वह अधिक खिलाने और व्यायाम की कमी को मानते हैं। जब ट्रिकी की हालत बिगड़ जाती है, तो वह उचित देखभाल के लिए उसे अपने अस्पताल में लाते हैं। उनका इलाज एक स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्ड और अन्य कुत्तों के साथ मिलकर रेगुलर एक्सरसाइज पर आधारित है। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को एक मोटे और आलसी कुत्ते की तरह व्यवहार किया। उसकी भोजन की मात्रा कम कर दी और शुरुआती कुछ दिनों में उसे कड़ी निगरानी में रखा। उसने ट्रिकी को पहले 2 दिनों में सिर्फ बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया, लेकिन कोई खाना नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने बैलेंस्ड डाइट के साथ ट्रिकी की भोजन की मात्रा बढ़ाई और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उसे शारीरिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र कर दिया। श्रीमती पम्फ्रे इसके बिल्कुल विपरीत थीं। अधिक लाड़ प्यार और अधिक खिलाना, कुत्ते की जरूरतों को न समझना जैसे कि ओवरफीडिंग के खतरे, बैलेंस लाइफस्टाइल का महत्व या प्रैक्टिकल केयर की शक्ति। मिस्टर हैरियट का ये प्रैक्टिकल अप्रोच ट्रिकी के तेजी से ठीक होने की ओर ले जाता है और उसे किसी भी प्रकार के मेडिसिन्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अच्छे स्वास्थ्य में उसके मालिक को लौटा दिया जाता है, जो ट्रिकी की बीमारी की समस्या के उनके सटीक इलाज को दिखाता है। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Answer: Mrs. Pumphrey was sending for Tricky fresh eggs, 2 dozen at a time to build up strength, bottles of wine to enrich blood, brandy to restore his health. The vet and his partners enjoyed eggs and breakfast. Wine with lunch became a ceremonial occasion. They enjoyed luxuriously around the fire with the brandy for few nights. These things were not regular for them. This made the temptation, lobh, pralobhan, to keep Tricky as a permanent guest because they know, the moment the Tricky will go, Mrs. Pumphrey will stop sending all these luxurious items. They have to come back to their normal lifestyle. Even though Mr. Herriot knows that Mrs. Pumphrey is suffering and Tricky needs to return to her. वह ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाह रहा था? आंसर: मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी के लिए ताजे अंडे भेज रही थीं, एक बार में 2 दर्जन उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, खून को गाढ़ा करने के लिए शराब की बोतलें, और उसके स्वास्थ्य को फिर से पहले जैसा ठीक करने के लिए ब्रांडी। वेट डॉक्टर और उनके साथियों ने नाश्ते में अंडों का आनंद लिया। दोपहर के भोजन के साथ शराब एक पार्टी जैसी हो गई। उन्होंने कुछ रातों तक आग के पास ब्रांडी के साथ शानदार आनंद लिया। ये चीजें उनके लिए नियमित नहीं थीं, इसीलिए उन्हें ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने का लोभ, टेम्पटेशन, होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन को ट्रिकी चला जाएगा, मिसेज पम्फ्रे ये सभी शानदार चीजें भेजना बंद कर देंगी। उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आना होगा। हालांकि मिस्टर हैरियट जानते हैं कि मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी के बिना दुखी है और उसे उनके पास वापस जाने की आवश्यकता है। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery?
Short answer, the transformation of Tricky from a lethargic, overweight, and sick dog to a lively, flexible, active, quick movement and energetic dog led Mrs. Pumphrey to attribute his recovery entirely to Mr. Heriot's medical skill and intervention. She is unable to understand that this change resulted simply from a controlled diet and regular exercise, and a sensible management, his rapid recovery without any medication. It was a great surprise to her. It was in this joy and gratitude, thankful, that she called it a triumph of surgery. Detailed answer, before consulting the veterinary surgeon Mr. Heriot. Tricky was lethargic, had no energy, refused to eat even his favorite dishes, and experienced bouts of vomiting, बार-बार उल्टी करना. He would lie on a rug, panting, हाफना, तेजी से सांस लेना. Unwilling to walk or do anything. Mrs. Pumphrey believed he was suffering from malnutrition. After treatment from Mr. Heriot, in just 2 weeks, Tricky transformed into a lithe, flexible, hard-muscled animal, keeping up well with the group, stretching out in great bounds, jumping, छलांग लगाना, his chest almost brushing, touching, the ground. When Tricky saw his mistress, he took off from the vet's arms in a tremendous leap, छलांग, and went straight into Mrs. Pumphrey's lap, गोद. Mrs. Pumphrey was surprised by this quick movement as Tricky swarmed over her, चढ़ जाना, licking her face and barking. This transformation from a lethargic, overweight, and sick dog to a lively, flexible, active, quick movement and energetic dog led Mrs. Pumphrey to attribute his recovery entirely to Mr. Heriot's medical skill and intervention. She is unable to understand that this change resulted simply from a controlled diet and regular exercise, and a sensible management, his rapid recovery without any medication. It was a great surprise to her. It was in this joy and gratitude, thankful, that she called it a triumph of surgery. मिसेस पम्फ्री क्यों मानती हैं कि कुत्ते का इलाज होना सर्जरी की जीत है? शॉर्ट आंसर, ट्रिकी का सुस्त, मोटे और बीमार कुत्ते से एक लाइवली, लचीले, एक्टिव, तेज हरकत और एनर्जेटिक कुत्ते के रूप में इस बदलाव को श्रीमती पम्फ्री ने पूरा श्रेय मिस्टर हैरियट के इलाज को दिया। वह ये समझने में असमर्थ थी कि यह बदलाव केवल एक कंट्रोल्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज और एक सेंसिबल मैनेजमेंट के कारण हुआ। बिना किसी दवा के उसकी तेजी से ठीक होना उनके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। इसी खुशी और कृतज्ञता, आभार में उन्होंने इसे सर्जरी की जीत कहा है। डिटेल्ड आंसर, वेटरनरी सर्जन हैरियट से सलाह लेने से पहले ट्रिकी सुस्त था, उसमें एनर्जी नहीं थी, वह अपने पसंदीदा भोजन भी खाने से इनकार कर रहा था और उसे बार बार उल्टी हो रही थी। वह एक गलीचे रग पर पड़ा रहता था, हांफता रहता था और चलने या कुछ भी करने को तैयार नहीं था। श्रीमती पम्फ्रे का मानना था कि वह मालन्यूट्रिशन से पीड़ित था। मिस्टर हैरियट के इलाज के बाद सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रिकी एक लचीले, हार्ड मसल्ड एनिमल में बदल गया था, जो कुत्तों के समूह के साथ अच्छी तरह रह रहा था, बड़ी छलांगे लगा रहा था और उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, तो वह वेट डॉक्टर की बाहों से एक जबरदस्त छलांग लगाकर सीधे श्रीमती पम्फ्रे की गोद में चला गया। श्रीमती पम्फ्रे इस तेज हरकत से चौंक गई क्योंकि ट्रिकी उन पर चढ़ गया। उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। एक सुस्त, मोटे और बीमार कुत्ते से एक लाइवली, लचीले, एक्टिव, तेज हरकत और एनर्जेटिक कुत्ते के रूप में इस बदलाव को श्रीमती पम्फ्रे ने पूरा श्रेय मिस्टर हैरियट के इलाज को दिया। वह ये समझने में असमर्थ थी कि यह बदलाव केवल एक कंट्रोल्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज और एक सेंसिबल मैनेजमेंट के कारण हुआ।
बिना किसी दवा के उसकी तेजी से ठीक होना उनके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। इसी खुशी और कृतज्ञता, आभार में उन्होंने इसे सर्जरी की जीत कहा है। 1. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? Answer. The narrator, a veterinary surgeon, was a tactful as well as full of common sense person. The narrator handles Tricky with love and compassion. He understood that the dog was not suffering from any illness. He is lazy and bulky because of overfeeding by his mistress. He did not perform any surgery on him, but rather cured him by controlled diet and regular exercise, with sensible management. Tricky recovered from his illness within 2 weeks. Narrator is also a tactful person as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for the necessary treatment. Despite being tempted by the continuous flow of luxurious food and to keep Tricky as a permanent guest, he ultimately decided to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky, prioritizing the dog's well-being over his own indulgence. The above show that the narrator, a veterinary surgeon, was a tactful as well as full of common sense person. 1. आपके अनुसार नरेटर, जो एक वेटरनरी सर्जन है, किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या आप कहेंगे कि वह चतुर, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल होने के साथ साथ कॉमन सेंस से भी भरपूर है? आंसर. नरेटर, जो एक वेटरनरी सर्जन है, वह चतुर, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल होने के साथ साथ कॉमन सेंस से भी भरपूर व्यक्ति है। नरेटर ट्रिकी को प्यार और करुणा से संभालता है। वह समझ गया था कि कुत्ता किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था। वह अपनी मालकिन द्वारा अधिक खिलाने के कारण आलसी और भारी हो गया है। उसने उस पर कोई सर्जरी नहीं की, बल्कि उसे कंट्रोल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड सेंसिबल मैनेजमेंट के द्वारा ठीक किया। ट्रिकी 2 सप्ताह के भीतर अपनी बीमारी से ठीक हो गया। नरेटर एक चतुर, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल व्यक्ति भी है। वह जानता था कि ट्रिकी के आवश्यक इलाज करने के लिए और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मिसेज पम्फ्रे को कैसे मनाना है। मिसेज पम्फ्रे द्वारा ट्रिकी के इलाज के समय ट्रिकी के लिए शानदार भोजन, वाइन, ब्रांडी आ रहा था, जिसका आनंद ये लोग उठाते थे। थोड़े समय के लिए इन्हें लोग प्रलोभन भी हुआ कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए। इसके बावजूद उन्होंने मिसेज पम्फ्रे को ट्रिकी को ले जाने के लिए कहा और कुत्ते की भलाई को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी। ये सभी बातें बताती हैं कि नरेटर, जो एक वेटरनरी सर्जन है, वह चतुर, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल होने के साथ साथ कॉमन सेंस से भी भरपूर व्यक्ति है। 2. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Short answer, yes, Tricky was happy to go home. He loved his mistress and also missed the comfort of his lavish life. He was not having friends at home, like in the hospital, but he seemed equally excited. I think now Mrs. Pumphrey will be more careful and will give Tricky exercise daily as prescribed by the vet earlier. Detailed answer, yes, Tricky was happy to go home. When Tricky saw Mrs. Pumphrey, he made a tremendous leap, chalang, from the vet's arms straight into her lap, god. He swarmed over her, chad jana, licking her face and barking, which forced Mrs. Pumphrey to defend herself. This clearly shows his deep affection and bond with his mistress and how much he had been missing her. Being a pampered and overfed dog accustomed to a lavish lifestyle and constant attention, Tricky likely missed his home and the many people who cared for him. While he didn't have dog friends at home like he did at the hospital,
his immediate reaction to Mrs. Pumphrey suggests he was overjoyed to see her. I think that after reaching home, Tricky will continue to be pampered but perhaps slightly less overfed by his wealthy mistress, Mrs. Pumphrey. Although she thanked Mr. Harriot, the vet, and exclaimed, "This is a triumph of surgery," she didn't seem to fully understand that Tricky's rapid recovery resulted simply from a controlled diet, regular exercise, and sensible management, without any medication. Of course, Mr. Harriot, the vet, will likely monitor Tricky from a distance and offer advice to Mrs. Pumphrey about maintaining the controlled diet and regular exercise. I think now Mrs. Pumphrey will be more careful and will give Tricky exercise daily as prescribed by the vet earlier. 2. क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश था? अब आपको क्या लगता है कि होगा? शॉर्ट आंसर, हाँ। ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था। वह अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं की भी याद आती थी। उसके पास घर पर दोस्त नहीं थे, जैसे कि अस्पताल में। लेकिन वह वैसा ही खुश था। मुझे लगता है कि अब मिसेज पम्फ्रे और अधिक सतर्क होंगी और वेट डॉक्टर की सलाह सुनेंगी। डिटेल्ड आंसर, हाँ, ट्रिकी घर जाकर खुश था। जब ट्रिकी ने मिसेज पम्फ्रे को देखा, तो उसने वेट डॉक्टर की बाहों से सीधे उनकी गोद में एक जबरदस्त छलांग लगाई। वह उन पर चढ़ गया, उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था, जिससे मिसेज पम्फ्रे को खुद का बचाव करना पड़ा। ये ट्रिकी का गहरा प्रेम अपनी मालकिन के लिए था। साथ साथ ये भी दिखाता है कि वह उसे कितना याद कर रहा था। ट्रिकी एक लाडला था और उसे अपनी मालकिन द्वारा बहुत अधिक खाना मिलता था। वह एक शानदार जीवन शैली का आदी था। ट्रिकी को अपना घर और उसकी देखभाल करने वाले कई लोग याद आ रहे थे। हालांकि घर पर उसके दोस्त नहीं थे जैसे अस्पताल में थे, लेकिन मिसेज पम्फ्रे के प्रति उसकी तत्काल प्रतिक्रिया बताती है कि वह उन्हें देखकर बहुत खुश था। मुझे लगता है कि घर पहुंचने के बाद ट्रिकी को उसकी धनी मालकिन मिसेज पम्फ्रे द्वारा लाड़ प्यार करना जारी रहेगा, लेकिन शायद थोड़ा कम खिलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट को धन्यवाद दिया और कहा, "ये सर्जरी की जीत है।" लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह पूरी तरह से समझ पाई थीं कि ट्रिकी का तेजी से सुधार बिना किसी दवा के, केवल एक कंट्रोल्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सेंसिबल मैनेजमेंट के कारण हुई थी। बेशक, वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट शायद दूर से ट्रिकी की निगरानी करेंगे और समय समय पर मिसेज पम्फ्रे को कंट्रोल्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में सलाह देंगे। मुझे लगता है कि अब मिसेज पम्फ्रे और अधिक सतर्क रहेंगी और वेट डॉक्टर की सलाह सुनेंगी। 3. Do you think this is a real life episode or mere fiction? Or is it a mixture of both? Answer: the story, A Triumph of Surgery, is both a mixture of a real-life episode and a mere fiction. Real-life episode: veterinary practice, experiences of a vet doctor. Pampering and overfed of a pet dog by a rich mistress, it is for the people who take excessive care of their children and thus spoil their habits. Consulting a veterinary surgeon when Tricky falls seriously ill, the narrator's temptation to keep Tricky for the sake of the food is a human reaction, also a slightly humorous one. Controlled diet and regular exercise, sensible management. These all can be a real-life episode. Fiction with Mrs. Pumphrey overindulgence that she overfeeds her dog, which results in his being overweight and restless. Although her intention was not wrong, but excess of everything is bad. But thinking of malnutrition and giving more and more food, Tricky going through surgery after getting overweight. Tricky having a lavish lifestyle, many people to take care for him.
Putting so many daily use items in the car, crying very hard when Tricky going for surgery, sending of foods, wine, brandy for him to restore his health, speed of recovery within 2 weeks. A triumph of surgery, climax that Mrs. Pumphrey's dramatic declaration and her complete misunderstanding of the actual cure, narrator Mr. Harriot's slightly amused tone. These all can be mere fiction to create a humorous, comedy, dramatic narrative. Thus we can say that the story, A Triumph of Surgery, is both a mixture of a real-life episode and mere fiction. 3. क्या आपको लगता है कि यह एक वास्तविक जीवन की घटना है या केवल एक कल्पना या ये दोनों का मिश्रण है? आंसर: कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक वास्तविक जीवन की घटना और कल्पना दोनों का मिश्रण है। वास्तविक जीवन की घटना वेटरनरी प्रैक्टिस, वेट डॉक्टर का अनुभव। एक अमीर मालकिन द्वारा एक पालतू कुत्ते का लाड़ प्यार और अत्यधिक खिलाना, यह उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों की अत्यधिक देखभाल करते हैं और इस प्रकार उनकी आदतें खराब करते हैं। ट्रिकी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर एक पशु चिकित्सक से सलाह लेना, भोजन के लिए नरेटर का ट्रिकी को रखने का लोभ, प्रलोभन, जो कि थोड़ी हास्यप्रद भी है और सत्य भी। कंट्रोल्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, सेंसिबल मैनेजमेंट, ये सभी एक वास्तविक जीवन की घटना हो सकती हैं। कल्पना, फिक्शन, लेकिन मिसेज पम्फ्रे का जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। अपने कुत्ते को इतना अधिक खिलाना कि वह अधिक वजन का हो जाता है। हालांकि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन हर चीज की अधिकता बुरी होती है। लेकिन उनका मालन्यूट्रिशन के बारे में सोचना और अधिक से अधिक भोजन देना। अधिक वजन होने के बाद ट्रिकी की सर्जरी होना, ट्रिकी की शानदार जीवन शैली, उसकी देखभाल के लिए कई लोग, कार में इतनी सारी डेली यूज का सामान रखना, ट्रिकी के सर्जरी के लिए जाने पर बहुत रोना, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भोजन, शराब, ब्रांडी भेजना, 2 सप्ताह के भीतर ठीक होना। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का क्लाइमैक्स, जिसमें मिसेज पम्फ्रे इस सर्जरी को कहना और यह नहीं समझना कि यह सिर्फ ज्यादा खाने और व्यायाम की कमी के कारण था। नरेटर मिस्टर हैरियट का थोड़ा मजाकिया और चिंताजनक लहजा, ये सभी एक हास्यप्रद, कॉमेडी, नाटकीय कथा बनाने के लिए मात्र कल्पना हो सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक वास्तविक जीवन की घटना और मात्र कल्पना का मिश्रण है। इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।